So, hello everyone, my name is Dipankar and I'm from the team Factual Concepts, right? The YouTube channel on which you're watching this video. Okay. So, in these series of videos which we are going to cover, we are going to cover the whole syllabus of class 10th physics, physics ICSE in whole length and breadth, right? So everything will be covered by me. So in this session, we are going to deal with the refraction of light at plane surfaces. Okay, the refraction of light at plane surfaces. Understood? So this we are going to deal with in दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा नाम दीपांकर है और ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हमारी टीम का नाम है। तो इस वीडियो में और जो सीरीज जो पूरी की पूरी वीडियोस आएंगी अभी, तो उसमें हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के सारे चैप्टर जो कि आईसीएसई बोर्ड में दिए गए हैं वो सारे कवर करेंगे। आईसीएसई के बाद विल गो ऑन सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई एंड ऑल द बोर्ड्स। ठीक है, तो वो हमारा मोटिव है। साइड बाय साइड इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, तो उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हो एंड वॉट एवर क्वेरीज यू आर हैविंग, we can connect on one or 1 to 5 or 1 on 10 Google Meet, and I will be personally there to take all your queries. ठीक है, so this is about us. So let's get started for the chapter. ठीक है, so first refraction of light. ठीक है, बहुत जल्दी से कवर करेंगे, फालतू चीजों में या आसान चीजों में ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, we will cover everything at a very fast pace, at a very optimum pace. You need not to take care or need not to worry about कि आसान चीजों में टाइम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, जो यूट्यूब पे काफी लोग लगाते हैं। तो दिस इज अ प्लेन सरफेस। ठीक है, इट इज अ plane surface partially reflecting and partially refracting. Now what will happen? First of all, let us draw a normal. Normal is a line which is perpendicular to the रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। ठीक है, अगर हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे है तो अगर यहां पे मुझे नॉर्मल बनाना है तो इस पोजीशन पे हमारा जो लाइन होगा दैट शुड बी perpendicular to it. So the crux is that normal is a line which is perpendicular to, making 90 degree to the प्लेन सरफेस और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, इन रियलिटी अ सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, if we make the ideal conditions and make it partially make it completely reflecting, then that is the other case. So now what will happen, a ray of light is incident on this surface, right, and it is making an angle of, let's say, I. Now it will be partially reflected back in the same medium following the laws of refraction, and what will happen, that it will get refracted also. Okay, it will get refracted also. ठीक है, and let's not make it a dotted line. Okay, and let this angle of refraction be r. ठीक है, now let us assume that this is air and this is glass. Okay, so yes. Okay, so now what happened, see here, you can clearly see that angle r, angle of refraction, is less than angle of incidence, right? Angle of refraction is less than angle of incidence. Angle of refraction is less than angle of incidence. Why? Because we are going from a rarer medium to a denser medium. Okay, so whenever we go from a rarer medium to a denser medium, what happens? The refracted ray bends towards the normal, towards the normal. Okay,
सो दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम। ध्यान से देख लो इसको कि एक सरफेस थी, वहां पे हमने नॉर्मल बनाया 90 डिग्री टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर उसके बाद एक लाइट इंसिडेंट होती है उस पे, एंड चूंकि एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। तो जो रे होगी वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी व्हेन इट्स गेट रिफ्रैक्टेड। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस यहां पे हुआ कि लाइट यहां से एक मीडियम से जाके दूसरी मीडियम में गई और बेंड हो गई, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस होल प्रोसेस वेयर the incident ray is bending after it is traveling from one medium to the other medium owing to the refractive index of the second medium is known as refraction of light। ठीक है। तो ये तो एक केस हो गया जहां पे वी आर गोइंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अब चलते हैं उस केस पे जहां पे हमारे पास वी आर गोइंग फ्रॉम अ denser medium to a rarer medium। ठीक है। I know all of you are knowing this, but I will cover it in a very fast way, don't worry। ठीक है। So now we are going from a denser medium to a rarer medium। ठीक है। Okay, so this is angle of incidence। Now see, I am drawing it by my hand, so it is not a very straight line, but assume that it is a straight line। ठीक है। We have to use the common sense, है ना। Okay, so now this, let us assume this is glass, and from glass it is going in air। ठीक है। The second medium is air। What will happen? It is going from denser medium to rarer medium, then the refracted ray will bend away from the normal, right? So r, so here we can say that we can see that the angle of refraction is greater than angle of incidence, right? Why? Because we know that whenever the ray of light travels from the rarer denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal, bends away bends away from the normal। ठीक है। from the normal, just sit and just keep watching it। ठीक है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। सो दिस इज द थिंग, राइट, कि एक रेयर मीडियम का केस हो गया और एक डेंसर टू रेयर का केस हो गया। अब एक और केस है विच इज लाइक कि when a ray of light is perpendicular incident at an angle 90 degree to the reflecting surface, it gets like that। Okay, it just travels undeviated। So here the angle of incidence is 90 degree and angle of refraction is also 90 degree। So see what such a beautiful concept of physics, कि even though the mediums are changing, but because the angle is 90 degree, it is going undeviated, no bending is seen, है ना। So there were three cases: first rarer to denser, second denser to rarer, and third whatever medium is, the angle of incidence and the angle of refraction both were both were 90 डिग्री। ठीक है। तो ये तीन केसेस हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पे लोगों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। पहला है कि द इंसिडेंट रे, ध्यान सुनना, लिसन प्रॉपर्ली, द इंसिडेंट रे, the refracted ray, the refracted ray and the normal, and the normal, मैं सब कुछ याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। आई विल मेक यू लर्न एवरीथिंग, डोंट वरी, जस्ट बी हियर। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, in the same plane, in the same plane। अब इसका मतलब क्या है? What does it mean? See here, this is my plane surface, right? Now the incident ray, okay, my incident ray, then
the refracted ray, my refracted ray, and the normal at the point of incidence. See, this red dot is the point of incidence. ठीक है? So the incident ray, the refracted ray, the normal at the point of incidence lie in the same plane. Means, see, the ground on which you walk is a plane, right? ठीक है? Room is a space. ठीक है? So how to differentiate between a plane and a space? स्पेस में तुम पानी भर सकते हो, प्लेन में पानी नहीं भर सकते. स्पेस हैज अ वॉल्यूम सो यू कैन फिल वाटर, बट दिस थिंग प्लेन डजंट हैज एनी वॉल्यूम. ठीक है? तो अगर आप इसमें पानी डालोगे तो वो पानी बह जाएगा, राइट? सो प्लेन इज टू डायमेंशनल सरफेस. ठीक है? एक्स वाई देखा है ना, वही चीज है. तो वो कह रहा है कि एक प्लेन पे हो रहा है सब, यानी कि स्पेस में तुम चीजों को देख रहे हो. ठीक है? नाउ द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड पॉइंट है कि the ratio of the sine of the angle of incidence angle of incidence I to the sine of angle of refraction r angle of refraction r is constant for the pair of given media, for the pair of given media. ठीक है? मीन्स sin I by sin R is constant, and this constant is equal to what? This constant is equal to the refractive index of second medium with respect to first medium. ठीक है? Okay, so whenever we write this, it is like refractive index of second medium. ठीक है? Right side में, then to with respect to the first medium. Understood? और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चूंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फर्स्ट मीडियम में आ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में आ रहा है ना? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों के कंपैरिजन का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें हम टू वाले को ऊपर रखेंगे, मतलब μ2 अपॉन μ1. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है? याद करने के तरीके हैं, you can just write it. And what is mu2? It is absolute refractive index. Absolute refractive index. Absolute refractive index. मतलब with respect to light. With respect to light. ठीक है? of second medium with respect to light. और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, व्हेन वी कंपेयर दीज टू मीडियम्स विद ईच अदर, देन इट बिकम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम राइट में विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है? याद करने के तरीके ताकि यू डोंट फॉरगेट इट. ठीक है? सो दिस इज द थिंग. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ refraction on the speed, frequency and wavelength of light. ठीक है? effect of refraction on first speed, second wavelength and third frequency of light. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को देखते हैं. अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है? सोर्स ऑफ लाइट. तो चूंकि सोर्स बदल नहीं रहा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी. ठीक है? सो एज द सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. So frequency remains same.
ओके, नाउ व्हाट अबाउट स्पीड एंड वेवलेंथ, ठीक है, व्हाट अबाउट स्पीड एंड वेवलेंथ, सो सी स्पीड डिपेंड्स, ठीक है, सो व्हेन स्पीड ऑफ लाइट, when speed of light depends, right? So let us me reframe it like this, कि speed of light is equal to speed of light in air, speed of light in air upon speed refractive index of second medium, ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट भी लिख सकते हो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट in second medium, speed of light in second medium upon refractive index of light, refractive index of air is equal to speed of light in air or vacuum upon refractive index of absolute, है ना, absolute index of second medium, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि V2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू V1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। दिस वी कैन राइट इट ऑल्सो की, और एयर को चूंकि एयर फर्स्ट मीडियम है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू RI1 अपॉन RI2, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और नॉर्मली होता क्या है कि जो स्पीड रहती है ना वो ऐसे हो जाती है कि V2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन म्यू ऑफ द सेकेंड मीडियम, ये हो जाता है। बट दिस इज कंफ्यूजिंग, राइट, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। क्यों कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसमें फर्स्ट मीडियम को एयर ले लिया गया है। अब इस फॉर्मूले में क्या है ना कि यू कैन डू मेनी थिंग्स। अब जैसे कि मान लो कि उसमें उसने कह दिया कि V2 जो है वो तुम्हें पता करना है, V1 दिया है ग्लास में, लेट्स से सम वैल्यू, ठीक है, V1 की वैल्यू ग्लास में दी हुई है। अब RI1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहां लिख दोगे, RI2 लेट्स से द सेकेंड मीडियम इज डायमंड, तो हो गया। तो V2 क्या आ जाएगी, V2 आ जाएगा V1 इंटू RI ग्लास अपॉन RI डायमंड, तुरंत हो गया। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, ठीक है, इट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, 1.5। तो इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1, मतलब
विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो अगर हम तो इट इज ऑलवेज रिलेटिव, बट इट इज रिलेटिव टू एयर। ठीक है, तो अब चूंकि एयर इज हैविंग वैल्यू 1 एंड वी हैव टेकन इट एज अ बेस, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर द स्पीड पार्ट। ठीक है ना, तो अब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि भाई फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फिर हमें पता चला कि जो स्पीड है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। अगर वो रेयरर से डेंसर जा रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, राइट, तो इट डिक्रीजेस। और अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। और डेंसर टू रेयरर ये कोई नहीं बताता, ठीक है, सब रटा रटाया बुक का बता देते हैं। इट इंक्रीजेस। ओके, सो अब चूंकि फॉर्मूला क्या रहता है वो पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 1/t, राइट, 1/टाइम पीरियड। ओके, सो लैम्डा, lambda is equal to, lambda is what? Lambda is distance। ठीक है, ओके, स्पीड तो हमने जो v लिखा वो, एंड टाइम इज 1/f। ठीक है, तो फिर क्या बन गया इसके हिसाब से? डिस्टेंस की जगह रखा लैम्डा को, स्पीड की जगह रखा v को, और टाइम की जगह रखा 1/f को। तो लैम्डा हो गया v/f, मींस लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो ये कोई फर्क डालने वाला नहीं है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो लैम्डा भी बढ़ेगा। और ये कब होगा? जब ये डेंसर टू रेयरर जाएगा। और अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग। ओके, सो थर्ड पॉइंट, लैम्डा मतलब वेवलेंथ डिक्रीजेस और इंक्रीजेस depending upon change in mediums। And varies in the same way as speed varies। ठीक है, this is very important concept which I have taught। Okay, so this is the thing basically। Now let's say कि let's do a question, find the refractive index of glass with respect to refractive index of water। ठीक है, सो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, मतलब आर आई ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? आर आई ऑफ वाटर। और इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते ऐसे है कि जिस कि आर आई जिसका निकालना हो ग्लास तो उसको राइट में, जिसके रिस्पेक्ट में वाटर तो उसको लेफ्ट में। ठीक है, ओके, तो ये क्या आ जाएगा?
दिस विल बी आर आई ग्लास कितना होता है 1.5 एंड आर आई वाटर कितना होता है 1.33। अब चूंकि सी वेन एवर यू आर सॉल्विंग फ्रैक्शंस ना और कैलकुलेशन ट्राई टू इंक्लूड व्हाट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब ये थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और 4/3 को लिख सकते हैं 1.3 को लिख सकते हैं 4/3, तो यह आ जाएगा 9/8। सो 9/8 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नाउ अब यहां पे अगर बोल दिया जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट with respect to find the speed of light, दूसरा क्वेश्चन find the speed of light in water after it travels from air। मतलब कि पहला मीडियम एयर था और दूसरा वाटर था, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, दिस इज आई एंड दिस इज आर। तो मुझे इसका स्पीड तो पता है 3 × 10⁸ और इसका स्पीड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था v2/v1, ठीक है। v2/v1 इज इक्वल टू वॉट, अब चूंकि यहां नीचे v1 है तो ऊपर क्या रहेगा μ1, है ना, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, और ऊपर ये है तो ये यहाँ पे μ2 रहेगा, ठीक है। तो v2 अपने को पता करना है, v1 है 3 × 10⁸। अब μ1 कितना है एयर का, इट इज 1, राइट, एयर का तो 1 ही होता है। और वाटर का μ2 कितना होता है, वाटर का इट इज 4/3, राइट, 4/3। तो v2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और ऊपर 3 चला गया, तो ये क्या आ जाएगा 9 × 10⁸/4, मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर लिखते समय हमेशा यूनिट लिखना है तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डू दीज थिंग्स, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे करना है भाई, और यही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और ये शायद बहुत कम लोग तुम्हें बता पाएंगे, है ना, ठीक है। Now this is the thing. Now a very important concept which is principle of reversibility of the path of light, ठीक है। सो ये कुछ है नहीं, नाम बड़ा है, कॉन्सेप्ट आसान है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बिलिटी ऑफ द path of light of the path of light of the path of light, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, ओके। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ध्यान से सुनो, जस्ट लिसन केयरफुली, इट इज नथिंग हियर। दिस इज नॉर्मल, दिस इज 90°, दिस इज 90°, ठीक है। अब दिस इज माई इंसिडेंट रे, ओके, दिस इज आई, सपोज दिस इज एयर एंड लेट्स से दिस इज वाटर, तो दिस विल बी माई रिफ्रैक्टेड रे, राइट। तो जब मैं यहां से देखूंगा, अगर मैं यहां बैठ गया, इफ आई एम सिटिंग हियर, अगर हम यहां बैठ गए, ठीक है, यहां पे, तो यहां से हम देखेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, आई रहेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, आर रहेगा, और वो क्या होगा μ2 μ1, मतलब 4/3/1 ये होगा, राइट, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं यहां बैठा हूं, यहां बैठ गया, अगर मैं यहां बैठ गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा साइन आई, क्या होगा, मेरा इंसिडेंट रे क्या दिखेगा, मेरा अब इंसिडेंट रे ये हो जाएगा आर, तो साइन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो मेरे लिए इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल विच इज आर, और मेरे लिए रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विच इज आई, और मेरे लिए सामने ये क्या आ जाएगा, इट विल बी μ1/μ2। तो यही है, बस चीजें उल्टी हो जाती हैं, जब चीजें उल्टी होंगी तो फिर क्या होगा कि पहला इसको इक्वेशन बना लो 1 और इसको इक्वेशन बना लो 2। इफ 1 × 2 इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, इट इज साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई, दिस एंड दिस कट, ये आ गया 1, राइट।
सो इट मीन्स कि म्यू 2 ऑफ 1 इज 1 अपॉन म्यू 1 ऑफ 2, यही है। और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जब आप इस तरफ हो तो यू सी दिस इज द रे विच इज गोइंग, विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरे मीडियम में। बट जब आप यहां पे आके बैठ गए तो आपके लिए पहला मीडियम वाटर हो गया। तो वाटर से अगर इंसिडेंट हो रहा है रे, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा आपका इंसिडेंट एंगल, विच इज डिनोटेड बाई आर। ठीक है, अब आर से मत डरो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री होगा तो तुम इंसिडेंट रे अपना 30 डिग्री लिखते हैं, और ये जो भी इंसिडेंट रे है वो अपना तुम रिफ्रैक्टेड रे वो 45 डिग्री लिखते हैं, अगर ये 45 होता, राइट। सो इट इज अबाउट द वैल्यू, नॉट अबाउट द सिंबल। ठीक है, तो डोंट वरी कि आर लिखा है तो रिफ्रैक्टेड हो, नहीं, इट इज अबाउट द वैल्यू। ठीक है, तो बस इतना याद रखते रहो, डोंट बी कंफ्यूज। जब तुम यहां से देखोगे तो इंसिडेंट यहां हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल ये बनेगा, तो ऊपर लिख लो। ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा तो नीचे लिख लो, और वो किसके बराबर होगा? सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम हो रहा क्या है? एयर। तो एयर, अब मैंने यहां 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि ये मैंने 1 माना था, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, और इसको मैंने क्या लिख दिया? म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, राइट। वाटर है ना, ओके। तो ये चीज है, कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is equal to 1 upon refractive index of air with respect to water. ठीक है, so this is the thing. Now let us discuss about very important thing, which is refraction through a rectangular glass slab. Rectangular glass slab. It is very easy but yet very confusing for people, so I'm going to tell you how to do it. ठीक है, तो first of all just draw a diagram. Okay, draw a diagram. So this is my glass slab, this is glass is having refractive index of 1.5, values हमेशा याद रखना. This is air which is having a refractive index of what? 1. So now this is the normal. ठीक है, so now this angle, this light is incident here. ठीक है, let be it angle I, so it will get refracted. So when it will get refracted the angle would be less, so it will be like this. So this is R, right. Now see, this angle will be equal to this angle. Why? Listen here carefully. Whenever there are two parallel lines, ठीक है, and a transversal is drawn, okay, whenever there are two parallel lines and तो alternate angles यही होते हैं ना, तो उसी का कॉन्सेप्ट है alternate angles का. ठीक है, ओके. So again, now this will be our emergent ray because it is emerging out, तभी ये अलग नाम emergent ray. Now अभी हमने क्या पढ़ा? Principle of reversibility of path of light, right? तो अगर ऐसे आकर के इंसिडेंट रे बन रहा है तो क्या अगर वैसे जाएगा तो वही बनेगा? देखो यहां पे, अगर यहां पे आर आ रहा था तो फिर यहां पे आई आ रहा था वापस जाते हुए, तो क्या अगर यहां से यहां आने में ई हो रहा है तो यहां से वहां जाने में ई से आई होगा? होगा, राइट. So this is why that is why emergent ray is equal to incident ray because of principle of reversibility of path of light. ठीक है, so angle I is equal to angle E. Okay, and these angles are same, these two angles are same, confuse मत होना, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लो. ठीक है, ऐसे कर लो, तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री होगा, राइट. ये एंगल अगर तुम्हारा आर है तो क्या ये एंगल आर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर ये 90 और ये आर है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस आर, यही होगा. तो ये कितना आ जाएगा? 90
माइनस आर, ये वाला एंगल, राइट। तो और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 प्लस एक्स, सॉरी, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको अगर x मान लेते हैं, तो x प्लस 90 माइनस आर इट इज इक्वल टू 90, राइट। तो 90 से 90 कट हो गया, x बराबर आर आ गया। तो ऐसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट देर इज अ शिफ्ट, है ना। इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम, ये शिफ्ट आ गया। तो दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो उठा उठा लगता है ना, इसी वजह से लगता है। Okay, so this is the thing. Now, what are the factors on which the lateral displacement depends? So lateral displacement depends on first thickness of the block. जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यहां लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डीपी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ये रिफ्रैक्टेड रे को मोड़ेगा। जितना ज्यादा मोड़ेगा तो उतना पीछे इमर्जेंट रे बनेगा। जितना पीछे बनेगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द थिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट। और I hope you like this video, and I will be uploading more to give your views on the method of teaching, how you liked it, and it will motivate us ताकि हम लोग और वीडियोस ला सके। और जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, अगर कोई भी तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, जस्ट फिल इट। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ चार्ज, और यू कैन रिमेन कनेक्टेड विद अस। ओके, ओके, थैंक यू, बाय।